हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे ये तीसरे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेलिएंट फीचर्स। दिस इज सेकेंड सेशन ऑन सेलिएंट फीचर. We have already discussed some around, you can say, 7 features of Indian Constitution. My dear students, Indian Constitution को समझने के लिए उसके जो महत्वपूर्ण फीचर्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, if you are knowing a lot about features of Indian Constitution, you will get any topic connected to those features will give you a deeper insight. दोस्तों, क्लैट की परीक्षा में यू आर गिवन अ पर्टिकुलर पैराग्राफ के बेसिस के ऊपर आपको लीगल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये सुनो, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. नाउ इन अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डीपर इंसाइट फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. Yes or no? For example, let us say there is a topic which is about federal government. Now, when it is about federal government, ठीक है, and if you know a lot about it, your ability to understand and comprehend the given paragraph will be easy. Okay, similarly, if you are really aware about varieties of the features like this, okay, अगर आपको you can say टॉपिक आया विच इज़ अबाउट ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज के बारे में कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया कि यूएसए में से क्या लिया गया है, ठीक है, या लेट्स से कनाडा से क्या लिया गया है, या आयरिश से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, या जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, देन यू आर वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ गिविंग द आंसर. ठीक है, एंड देयर बाय यू विल बी सेविंग लॉट ऑफ टाइम. सिमिलरली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाउ डज इट वर्क, what challenges are being faced. I believe you can say in this scenario of these 3 farm bills, how it is made without any kind of you can say discussion, and then the laws are being repealed. I believe there may be a wonderful question may be developed related to parliamentary system. Similarly, you can say integrated and independent judiciary. There may be questions which will be developed about substantial law as well as procedural law. ठीक है, and then we are going to discuss about due process of law और procedure established by law. ये सब आइडियाज को कनेक्ट करते हुए एक अच्छा सा एक इनसे पैराग्राफ बन सकता है और उसके ऊपर से अच्छे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, we have already covered all these topics in session number 1. In case you have not attended our session number 1, please go through that. Okay, they are very crucial. Today we are going to pick up the next topics. They are very crucial, बहुत important है. We are going to talk about synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या होना चाहिए. भारत में इन दोनों का सिंथेसिस है. अमेरिका का आइडिया क्या है, अमेरिका में क्या चीज़ का फ्लॉ है, इंग्लैंड में क्या है, वहाँ पे क्या दिक्कतें आई. आपको याद होगा when we discussed about our Indian Constitution is more flexible than rigid and it is lengthiest written constitution. We argued that why our constitution is lengthiest, because we have ensured all the important you can say constitutions का आइडिया हमने लिया और उनके constitution में कुछ फ्लॉ है, उन फ्लॉ को हमने हटाने की कोशिश करी थी. Yes or no? Similarly, in you can say this particular format, which is should we have a parliamentary sovereignty या judicial supremacy. ठीक है, हम उसके ऊपर बात करेंगे. We are going to discuss about fundamental rights, DPSP, fundamental duties. One very important discussion one needs to have about secular state. We are going to get into that detail, and then another important issue to be discussed about single citizenship and universal adult franchise. Let's start. Point number 8. Salient features of Indian Constitution. Let me remind you, this is session number 3 of Indian Constitution, ठीक है, which is part 2 of salient features. Remember that, okay? In case you have missed it, please go through that particular video. Okay, let me start to talk about this judicial supremacy and parliamentary sovereignty. Now, what is the meaning of this? What is, you can say, parliamentary sovereignty? Parliamentary sovereignty का मतलब होता है कि भैया
Your parliament is sovereign. Whatever the law they make, they are final. Okay. You cannot question them. You cannot question them. That's the meaning of parliamentary sovereignty. While judicial supremacy is, okay, whatever is a law are being made, judiciary is supreme. दोस्तों भारत में है ना, हमने इन दोनों का बैलेंस रखा. Okay, while you can say British Parliament is having a doctrine of sovereignty of Parliament, while American Supreme Court has a supremacy and they go by a principle of judicial supremacy. So we are harmonizing both the things. दोस्तों अमेरिका के सिस्टम को समझते हैं पहले, एंड दैट विल गिव अस एन आइडिया ऑफ व्हाट इज जुडिशियल सुप्रीमेसी. दोस्तों जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब क्या है? ओके, जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब है द जुडिशरी इज ऑल पावरफुल. ओके, वॉट एवर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज, वॉट एवर द फेडरल कोर्ट of USA tells it is to be, it is to be. समझ आया आपको? दोस्तों जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? ठीक है. If someone is asking you कि what is the USA constitution all about, then your answer would be whatever the Supreme Court of USA says it is to be, it is to be. ठीक है दोस्तों, यूएस जुडिशरी ने वहां पे सुप्रीमेसी से लेके रखी अंडर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Whatever is the interpretation by US judiciary, that is final. My dear students, आपको पता होगा we have been discussing about legislature, executive and judiciary. उनमें से judiciary का काम है, ठीक है, to interpret the law, and we talked about तीन organs का separation of power होता है. So अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द ऑर्गन्स, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दे आर ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट लेवल. और उसके अंदर जो भी इंटरप्रिटेशन इज बाय सुप्रीमेसी ऑफ दैट इज सुप्रीम कोर्ट, दैट इज फाइनल. दोस्तों देयर इज अ पावर टू इनवैलिडेट अ लॉ which is passed by legislature not only on the ground of violative of bills of rights or it transgresses the legislative power, but also on the ground of the principle called due process of law. This is very important. भैया सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है. आपको याद होगा ये जुडिशियल रिव्यू का विचार भारत ने अमेरिका से ही लिया. Yes or no? Which means India का Supreme Court has a power to interpret the law, to understand the law and check whether the law is following procedure established by law. And in America, the interpretation is due process of law, which means you can say if Parliament makes a law and the law is not just, it is not fair, it is not reasonable, okay, then Supreme Court of USA has a power to nullify that law. Do you get this point? Yes or no? So that means due process of law का क्या मतलब है? Due process of law का ये मतलब है कि भैया whether there is rule of law is followed or not, ठीक है, whatever is the object of law, whether they are fulfilling the constitutional objectives or not, whether the law are just fair and reasonable or not, that is the meaning here. Okay, भारत ने भी ये विचार कुछ सालों के बाद अडॉप्ट करा. जुडिशियल रिव्यू का विचार, ठीक है, केशव नंदा भारती केस के पहले, सॉरी मेनका गांधी के केस के पहले ये इंटरप्रिटेशन होता था दैट देयर इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर इन द लेजिस्लेचर. आपको याद होगा 3 फार्म लॉ में सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये लॉ को हॉल्ट कर दीजिए, और जब तक हम उसको सुनेंगे नहीं, जब तक हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वैलिडेट नहीं करेंगे, तब तक ये लॉ एक तरीके से मतलब हॉल्ट किए जाएंगे. सिमिलरली आज की तारीख में CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, they are basically, they are as of now you can say the matter is sub judice, which means the matter is in the court.
और उस समय पे अगर कोर्ट को लगता है कि आर्टिकल 370 इज रॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, या CAA भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के विचार के द्वारा, ठीक है, उस लॉ को कैंसिल कर सकती है। समझ आया आपको? यस, वेरी गुड। ठीक है, सो अमेरिकन जुडिशरी दस हैज अ पावर टू सीट ओवर एनी लेजिस्लेटिव पॉलिसी एज इफ इट वर अ सुपर चैम्बर ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब उसके ऊपर बैठकर वो जो फाइनल बोले वही फाइनल है भारत के अंदर। ठीक है, कुछ कुछ सिचुएशन में जो भी लेजिस्लेचर बोले वो भी फाइनल माना जाता है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन किस बात को बिलीव करता है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव करता है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। यस और नो? वेयर पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड इट कैन डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल। ठीक है, जो भी उनको करना है वो कर सकते हैं। यस और नो? ठीक है, जीन लुई दी लोम ने 1771 में अपनी बुक में, ठीक है, क्रिटिसाइज किया था इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को, ये बोलते हुए दैट पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग, सब कुछ कर सकता है, बट मेक अ वुमन अ मैन एंड मैन अ वुमन। क्रिटिसाइज कर रहा था कि सब पावर दे के रखा हुआ है, सिर्फ वो नेचुरल पावर भगवान के हाथ में कि एक आदमी को मतलब आदमी बना दिया या औरत बना दिया, ठीक है, अब उसको बदल नहीं सकते, वैसा ही, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला बाकी सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वेयर दी यू कैन से बिग प्रॉब्लम विच इज कमिंग अप। ठीक है, ये सोवरेनिटी पार्लियामेंट की है। ठीक है, विच मीन्स सब कुछ कर सकते हैं। भारत ने इन दोनों के बीच का मिडिल ग्राउंड लिया। ना हमने पार्लियामेंट को इतना पावर दिया, ना हमने जुडिशरी को बोला कि आप जो बोलो वो भगवान, मतलब भगवान की देन है, आकाशवाणी है और हम मान लेंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करी। ठीक है, दोनों को बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ? दोनों को बैलेंस करने का मतलब हुआ कि एज एंड व्हेन यू कैन से देयर इज अ लॉ व्हिच गोज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तब जुडिशरी उस बात को से अपने हाथ में लेगी और रूल बदल सकती है, या रूल खारिज कर सकती है, या रिपील कर सकती है। और पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसको जो लॉ बनाना बनाए, ठीक है, पर बेसिक स्ट्रक्चर को वो छेड़खानी ना करे। ठीक है, आई बात समझ में? दोनों को बैलेंसिंग एक्टिविटी, ग्रेट। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 9 अबाउट सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, भारत में फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट करने का विचार आया अमेरिका के जो बिल्स ऑफ राइट्स का जो आइडिया था, वहां से हमने लिया कि भाई लोगों के अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना चाहिए, ताकि हम क्लियर कट बोल सके कि आपके पास ये अधिकार है। और वो भी हम ऐसे अधिकार के बारे में बात करते हैं जो फंडामेंटल है। ठीक है, फंडामेंटल टू व्हाट? फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल और फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नेंस। दोस्तों, अधिकार, राइट्स गिवन टू द सिटीजन्स आर प्राइमरली अ रिस्ट्रिक्शन फॉर द गवर्नमेंट। ये सुनो, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम कर सकती है, पर गवर्नमेंट लोगों के अधिकारों को छीन नहीं सकती है। ये बात समझ में आई आपको? ग्रेट। सब जब लोगों के अधिकारों को छीन नहीं सकती है, यह विचार के द्वारा अगर अधिकार मिलते हैं, तब हम उसको बोल सकते हैं कि भैया ये फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द नेशन है। ऐसे राइट्स जो फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द नेशन है। दोस्तों, हमने एक से बिल्स ऑफ राइट्स जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया उठाया, बट द गारंटी ऑफ आवर इंडिविजुअल राइट्स in our constitution has been very carefully balanced with a need for the security of the state itself. So in India, this fundamental rights, ठीक है, can be curtailed. उसको रोका जा सकता है। ठीक है, they are not absolute right. ठीक है, देश की सिक्योरिटी को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रोक दिया जाएगा। इक्वालिटी ऑफ लॉ नहीं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो भी आदमी लॉ के सामने इक्वल है वो तो इक्वल ही है। ठीक है, पर फिर भी आपके फंडामेंटल राइट को रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। समझ आया आपको? दोस्तों, ये है इंडिया का फंडामेंटल राइट्स। ठीक है दोस्तों, हमने फंडामेंटल राइट्स जो रखे उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये था कि देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बरकरार रहे, विच मीन्स इवन as a farmers you are
इन माइनॉरिटी, आप भले माइनॉरिटी में हो, आपके अधिकारों को कोई छेड़ेगा नहीं। इवन लेट्स से यू आर मुस्लिम वुमन, ठीक है, और आपको ट्रिपल तलाक से प्रॉब्लम है, ठीक है, तो भी आपके पास अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी। आप वुमेन हो, आपको सबरीमाला टेम्पल में जाना है, ठीक है भैया, आपके पास अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। दोस्तों, ऑल दिस फंडामेंटल राइट्स दे ऑपरेट, मतलब दे आर वर्किंग एज अ लिमिटेशन ऑन द टिरानी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के पास बहुत पावर है, पर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकते, उनको रिस्ट्रिक्शन किया जाता है। वो रिस्ट्रिक्शन कौन देता है? फंडामेंटल राइट देता है। लेजिस्लेचर को भी रिस्ट्रिक्ट करा जाता है कि आप आर्बिटरी रैंडम कोई भी लॉ नहीं बनाओगे, जैसे थ्री फार्म लॉज नहीं बनाओगे, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है, उनको रोका जाता है। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट ना बने, डेस्पोटिक गवर्नमेंट ना बने, टायरेंट गवर्नमेंट ना बने, एक तरीके से डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट ना बने, ऐसा उनका काम है। द एम ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज अ गवर्नमेंट should be made up of laws and should not be of man। आदमियों की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, कानूनों की गवर्नमेंट होनी चाहिए, विधि के विधान से सरकार चलनी चाहिए, किसी आदमी के विचारों से नहीं चलनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स आर जुडिशियल इन नेचर, जस्टिसिएबल इन द नेचर, ठीक है, जहां पे आप उनको कोर्ट में ले जा सकते हो और कोर्ट में ले जाकर उसके बारे में आप फोर्स करवा सकते हो, एनफोर्स करवा सकते हो कि आपके पास ये फंडामेंटल राइट्स है। दोस्तों, एनी एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, विच कैन इश्यू प्रेरोगेटिव रिट्स। 5 रिट्स होती है। कौन सी 5 रिट्स? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, सर्श्योरारी एंड प्रोहिबिशन। ये 5 रिट्स को आप ले जाकर कोर्ट में बोल सकते हो कि भैया ये देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं और देखिए ये हमारे साथ क्या हो रहा है। कोर्ट आधी रात को भी आपकी बात सुनने को आ जाएगी, ये ध्यान रखना। दोस्तों, भारत में फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। ये एब्सोल्यूट नहीं है कि आप खड़े होकर बोल देंगे कि ये देखिए मेरे पास एक मूलभूत अधिकार है और ये मूलभूत हक की वजह से मुझे ये कंपलसरी दे दीजिए। ना जी भैया, दे कैन बी कर्टेल, दे कैन बी रिपील्ड through Parliament Act as well. For example, we had right to property. Right to property was fundamental right. हमने उसको रिपील कर दिया विथ एन एम कि भैया ये फंडामेंटल नहीं हो सकता देश को चलाने के लिए, नहीं तो देश चल ही नहीं पाएगा, है ना। उनको एक रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, और एक आदमी बोल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और ये मेरा फंडामेंटल अधिकार है और आप इसको छीन नहीं सकते हो, ठीक है। दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड भी हो सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, पर ऐसे 2 आर्टिकल है जिसको सस्पेंड नहीं कर सकते ड्यूरिंग इमरजेंसी, विच इज आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21। ओके, देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट इश्यू, फंडामेंटल राइट्स का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। फंडामेंटल राइट्स डजंट ओनली एंश्योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, इट ऑल्सो एंश्योर सोशल इक्वालिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, जब भी किसी बंदे का डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, लाइक इन अ मुस्लिम विमेन तलाक के केस में, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है, रिजर्वेशन के मुद्दे के अंदर, ठीक है, जहां ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, ठीक है, जेंडर। भैया आप देखेंगे ये जो आर्मी के अंदर परमानेंट कमीशन में वुमेन को नहीं रखा गया, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, डोमिसाइल के रूल्स रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर, ठीक है, अगर ये सब चीज़ें या अनटचेबिलिटी या ऐसी कोई भी चीज़ें चलती है, ठीक है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और इसीलिए फंडामेंटल राइट्स आर वेरी क्रूशियल, दे आर वेरी क्रूशियल। यस और नो। दोस्तों, उसके बाद आता है अनदर फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नाम ही बताता है कि स्टेट पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नॉवल फीचर है जहाँ पे हम बताएंगे
कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सरकारों को एक मॉरल फ्रेमवर्क देता है, एक डायरेक्टिव देता है, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल देता है कि किस तरीके से स्टेट की पॉलिसी आपको चलानी चाहिए. दोस्तों, ये डीपीएसपी कैन बी डिवाइडेड इनटू सोशलिस्टिक, यू कैन से, काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स, या गांधीयन प्रिंसिपल्स, या लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. इस तरीके से फिलोसॉफिकली डिजाइन हो सकता है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स of state policies are meant for promoting the ideals of social and economic democracy, ताकि, ठीक है, poor people should not become poorer and rich people should not become richer. There has to be equality. There has to be equal opportunity to the people. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुअर लोग और बर्बाद हो जाए. दोस्तों, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ हमारा देश क्या होना चाहिए? वेलफेयर स्टेट. कोरोना की सिचुएशन आ जाएगी, कोरोना की सिचुएशन के सामने, ठीक है, सरकारों के पास जो गोदामों में अनाज पड़ा है, वो गोदामों का अनाज लोगों को बांटना चाहिए, कम दाम पे कि नहीं बांटना चाहिए. जब ऐसा सवाल मन में आएगा, ठीक है, तो सभी सरकारों को, सभी प्राइम मिनिस्टर्स को ये एक प्रिंसिपल याद आएगा. डीपीएसपी बोला था दैट देयर हैज टू बी वेलफेयर स्टेट, और लोगों को सस्ते दाम पे अनाज देना चाहिए, लोग भूखे नहीं मरने चाहिए. डू यू गेट दिस आइडिया? दोस्तों, जब, ठीक है, से पुराने ज़माने में राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है भाई, कोई ऐसा अजीब मुगल सम्राट होगा, ठीक है, और उसके यहाँ पे अकाल पड़ा, क्या मुगल सम्राट ने अपने, एक ऐसे राजकोष के दरवाजे खोले और लोगों को अनाज बांटा क्या? ठीक है, कुछ लोगों ने ज़रूर बांटा होगा, बाबर ने बांटा होगा, अकबर ने किया होगा, ये सनो, पर कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, ये सनो. तो यहाँ पे बात वही हो रही है कि क्या विचार रखे, कैसा देश बनाए. हमने बोला वेलफेयर स्टेट होगा, ठीक है. दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन द नेचर, पर डीपीएसपी दे आर नॉट जस्टिसिएबल इन द नेचर. दैट मीन्स अगर डीपीएसपी के द्वारा कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, वो प्रिंसिपल सरकार फॉलो नहीं करती है, वी कांट पुट अ ब्लेम ऑन द गवर्नमेंट एंड आस्क गवर्नमेंट टू कम टू द कोर्ट एंड फाइल अ केस फॉर दैट. वी कैन नॉट. However, Constitution itself declares that these principles are fundamental in the governance of the country, and it is a duty of the state to apply this principle as and when there is a possibility. So it is acting as a moral fabric. ठीक है, एक moral fabric का काम करता है, एक moral obligation का काम करता है. किसके लिए? स्टेट के लिए, ताकि स्टेट, ठीक है, जिस तरीके से काम करे वो कोशिश करे कि लोगों का भला करे. एक तरीके से कोई भी सिचुएशन में अगर लोगों का भला नहीं होता है, ठीक है, तो लोग, ठीक है, से रास्ते पे आ जाते हैं. ठीक है, यूरोप में आप देखते ही होंगे आज के समय पे बहुत सारे कोरोना के केसेस है और लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है. लोगों को लॉकडाउन पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, लोगों के भले के लिए नहीं है लॉकडाउन, एंड देयर बाय दे आर प्रोटेस्टिंग, दे आर ऑन द रोड, एंड काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही है. दोस्तों, मिनर्वा मिल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को बैलेंस करने की कोशिश करी थी, और आज अभी भी वैसा सिनारियो चल रहा है. दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा एक से अडॉप्ट करा था, विच इज पार्ट 4A, आर्टिकल नंबर 51A. ठीक है, सब याद रखेगा. दोस्तों, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42nd अमेंडमेंट में हमने डाला, एंड देयर आर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. नाउ दिस ड्यूटीज आर फॉर सिटीजन्स. ठीक है, ड्यूटीज है, सिटीजन्स का मॉरल ऑब्लिगेशन है. आगे हमने देखा स्टेट का मॉरल ऑब्लिगेशन था डीपीएसपी. यस नो, सिटीजन्स का मॉरल ऑब्लिगेशन कहां से आया? इट इज कमिंग फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज दे सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन्स दैट वॉट एवर द राइट्स यू आर एंजॉइंग, यू एंजॉय. ठीक है, बट यू ओ ड्यूटी टू योर कंट्री. ठीक है, टू योर सोसाइटी, टू योर फेलो सिटीजन्स. जस्ट लाइक डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिसेबल इन द नेचर. बहुत बार
ठीक है, क्रिटिसाइज किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि फंडामेंटल ड्यूटीज आप सिर्फ लिखे हो, उसको जस्टिसेबल बनाया नहीं है, तो कैसे इतने सारे लोगों के पास से आप ये ड्यूटी, ये उनकी ऑब्लिगेशन को इंप्लीमेंट करा पाएंगे? बिल्कुल बड़ा सवाल है इस बात के ऊपर। मेरा मानना है कि हालांकि हमने उसको कंपलसरी किया नहीं है, हमने उसको जस्टिसेबल किया नहीं है, पर फिर भी हमने लिखा है जिसके द्वारा हम लेकिन से जब भी कोई महत्वपूर्ण केसेस आएंगे, उन केसेस में हम ये बता पाएंगे कि सिटीजन्स की ये ड्यूटी है और यहाँ पे ये गलत हो रहा है। हालांकि हर एक बंदे को डंडा मार के वो ड्यूटी नहीं करवा सकते, ठीक है, पर जब कभी कन्फ्लिक्ट आएगा, उस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हम कुछ काम कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ग्रेट, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, the most important feature of Indian Constitution in today's time to be discussed at great length is this secular state. दोस्तों, our government does not have a particular religion. There is no official religion of a state. We believe that all religions are equal and we do not have our own religion as a state. While if you go by the secularism idea of Western countries, what do they say is there is, you can say secularism का मतलब है complete separation between state and religion. सरकार अलग तरीके से चलेगी, ठीक है, और रिलीजन अलग तरीके से चलेगा, ये दोनों एक दूसरे में घुसेंगे नहीं. However, state has a power to have their own religion. दोस्तों, भारत में स्टेट के पास कोई रिलीजन नहीं है. दिस आइडिया ऑफ वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इज नॉट एप्लीकेबल. इफ यू टॉक अबाउट अमेरिका, दोस्तों, अमेरिका की करेंसी नोट के ऊपर लिखा होता है मे गॉड ब्लेस अस, ठीक है. फ्रांस का जो सेक्युलरिज्म है, जिसको कहा जाता है लाइसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, वहां पे बोलते हैं कि हमारी सरकार का खुद का एक से धर्म है, बट एक से व्हेन इट कम्स टू स्टेट इट इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, विच मीन्स अगर आप स्टेट स्कूल में पढ़ते हो और अगर आप टर्बन पहन के गए, एक से काला धागा गले में बांध के गए, या ऐसे रेड धागा आपने हाथ पे बांध दिया, तिलक करके गए, तो नहीं चलेगा. क्यों? पब्लिक डोमेन में आप अपने एक से धर्म को प्रेजेंट नहीं कर सकते, धर्म के द्वारा अपने आप को डिस्टिंग्वाइज नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट द आइडिया, ठीक है. वाइल इन इंडिया द गेम इज डिफरेंट. वी आर मल्टी रिलीजियस सोसाइटी. हमारे यहाँ पे इतने सारे अलग अलग धर्म हैं. हिंदू धर्म की शुरुआत यहीं से हुई, जैन धर्म की शुरुआत यहीं से हुई, बुद्धिज्म की शुरुआत यहीं से हुई. पारसी लोग जब एक से ईरान छोड़ के इंडिया में आए तो वो यहीं पे बस गए. ये सनो क्रिश्चियनिटी ने यहाँ पे मिशनरी स्टाइल में बहुत बड़ा फैलावा किया, ठीक है. मुस्लिम्स आए, यहाँ पे सेटल हो गए, ठीक है. तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे इतने सारे रिलीजन आए और बहुत सारे रिलीजन को अलग अलग धर्मों के राजाओं ने उसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश करी. भले वो फिर राजा अकबर हो, जिन्होंने अलग अलग धर्मों की बातें समझी और दीन इलाही नाम का नया धर्म की स्थापना करी और सभी लोगों को इक्वालिटी की बात करी, जजिया टैक्स नाबूद किया, ठीक है. या फिर कोई हिंदू राजा हो, जैसे पृथ्वीराज चौहान हो, ठीक है, जिसने मुस्लिमों को, क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम है इसकी वजह से उनको निकाल के बाहर फेंको, ऐसा नहीं बोला. ही अलाउड मुस्लिम्स टू स्टे इन द कंट्री, ठीक है. सो वी हैव lived together, all religions have lived together, and thereby हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देना, ठीक है, एंड हर एक रिलीजन को प्रोटेक्ट करना, ये स्टेट का अधिकार है, ये स्टेट की ऑब्लिगेशन है, स्टेट करेगा. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्युलर स्टेट. भारत का सेक्युलरिज्म इज वेरी डिफरेंट. दोस्तों, भारत के सेक्युलरिज्म को अगर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के साथ कंपेयर किया जाए, सो वी आर वेरी डिफरेंट. Okay, now we come to another important point, that is universal adult franchise without communal representation. भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है. यूनिवर्सल, एवरीवन
याद रहे, भारत ऐसा एकमात्र देश है जिसके इंडिपेंडेंस के टाइम से ही सभी लोगों को वोटिंग करने का अधिकार, भले वो फिर मेल हो या फीमेल हो या कोई से भी कास्ट का हो, सबको अधिकार मिला अगर वो एडल्ट है. दैट इज व्हाट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. नो क्वालिफिकेशन बीइंग आस्क्ड. ना आपका सेक्स देखा जाएगा, ना आपकी प्रॉपर्टी देखी जाएगी, ना आपका टैक्सेशन का एस्पेक्ट देखा जाएगा, ना आपका कोई और गणित कि आप एजुकेटेड हो एंड नॉन एजुकेटेड हो, आपका घर है बाहर है, कुछ भी नहीं देखा जाएगा. दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोस्तों, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये बोलता है कि सभी लोगों को, ठीक है, यूनिवर्सल, एवरीवन, एनीवन हु इज एडल्ट विल गेट अ वोटिंग राइट. द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, ठीक है, विच अंडरलाइज declaration in the preamble that constitution is adopted and given by the people of India to themselves. So Indian democracy is by the people, for the people, of the people. ये विचार को इम्प्लीमेंट करवाना है तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए, उसके बगैर ये बनेगा नहीं. एंड मोर इंपॉर्टेंटली, नो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. याद होगा आपको, ब्रिटिशरों ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन चालू करा था. उन्होंने 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया. 1909 में, ठीक है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम के अलग अलग कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किए और ये इंडिया को पूरा तोड़ने की कोशिश करी. हमने बोला ऐसा नहीं होगा, है ना, वी विल नॉट हैव इट. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एनहांसेस सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, भले वो अमीर हो या गरीब हो, लिटरेट हो या इलिटरेट हो, ठीक है. वो कॉमन आदमी एक कॉन्फिडेंटली बोलता है कि हाँ, मेरा वोट देने का अधिकार है और मैं वोट दूंगा और वोट देकर मेरी पसंद की सरकार को लगाऊंगा, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज कैन प्रोटेक्ट देयर राइट्स. ठीक है, भले वो रिलीजियसली माइनॉरिटी में हो या कास्ट बेस्ड माइनॉरिटी में हो या जेंडर बेस्ड माइनॉरिटी में हो, उनके अधिकारों को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे और वीकर सेक्शन अपने आप को बचा पाएगा. दोस्तों, हमने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एबॉलिश कर दिया. ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था. ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, वहां से मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े रहेंगे और मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे, क्रिश्चियन कैंडिडेट को सिर्फ क्रिश्चियन वोट करेंगे. ठीक है, वैसा नहीं किया. हाउएवर, ठीक है, हमने एक कोशिश करी कि हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन देने की कोशिश करी. रिजर्वेशन दिया मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही खड़े हो सकते हैं या शेड्यूल ट्राइब के लोग ही खड़े हो सकते हैं या एंग्लो इंडियन के लोग ही खड़े हो सकते हैं. इस तरीके का विचार हमने लिया सो दैट यू कैन से अलाउिंग देयर रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, उनके नंबर दिखे. ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों. ठीक है, साथ में वी अलाउड सिंगल सिटीजनशिप अनलाइक अमेरिका विच हैज अ ड्यूअल सिटीजनशिप. ओके, we don't have a dual citizenship like सेंटर का सिटीजनशिप और स्टेट का सिटीजनशिप. ना जी, ना जी, ना जी. ठीक है, वी हैव ओनली वन सिटीजनशिप विच इज ऑफ इंडिया. ओके, ठीक है, यूएसए में हर आदमी के पास ना सिर्फ यूएसए की सिटीजनशिप है पर उसके पास एक पर्टिकुलर स्टेट की भी सिटीजनशिप है, मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप है. ये सुनो, दैट मीन्स वो आदमी एक स्टेट का भी है और एक देश का भी है. इंडिया में ऐसा नहीं है. वी आर इररिस्पेक्टिव ऑफ विच लैंग्वेज वी स्पीक, ठीक है, फ्रॉम विच स्टेट वी आर कमिंग फ्रॉम, विच रिलीजन वी हैव, वी आर इंडियन. याद है चक दे इंडिया के अंदर, है ना, कबीर खान क्या बोलता है, ठीक है, तुम कहाँ से हो. ठीक है, तो वो सब लोग बोलते हैं मैं पंजाब, कोई हरियाणा, कोई राजस्थान, और एक लड़की बोलती है आई एम फ्रॉम इंडिया. और वही बताता है कि मुझे बस ये चाहिए दैट यू आर फाइटिंग फॉर इंडिया. जब आप ब्लू कलर के कपड़े पहनकर से जाओगे मैदान में लड़ने के लिए, आप इंडिया के लिए लड़ रहे हो, ना पंजाब के लिए, ना हरियाणा के लिए, ना गुजरात के लिए, ना महाराष्ट्र के लिए. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस और नो, दिस इज वेरी क्रूशियल. देन वी अलाउड इंडिपेंडेंट बॉडीज. व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट बॉडीज? दोस्तों, डेमोक्रेटिक सिस्टम चलाने के लिए वी नीड लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉट ऑफ लेजिस्लेटिव, यू कैन से एक्टिविटीज. ये सब एक्टिविटीज को अच्छे से काम कराने के लिए वी नीड मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी विच आर एक्टिंग एज
इंडिपेंडेंट बॉडी, ओके, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पूरे देश में हमें इलेक्शन करवाना है, ये सुनो, अब वो इलेक्शन कोई कारण से जो रूलिंग पार्टी है वही अगर करवा दे तो क्या रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी को इलेक्ट होने देगी? क्या ईवीएम मशीन के अंदर, है ना, हर हर मोदी के नारे के अलावा कुछ और निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, ये सुनो, ठीक है। इसीलिए हमें इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रखना पड़ता है। सिमिलरली सीएजी, सिमिलरली यूपीएससी, सिमिलरली सीवीसी, ये सुनो, इन सबको इंडिपेंडेंट रखना पड़ता है ताकि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को अच्छे से कर पाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच एंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द पार्लियामेंट, ठीक है। 5 इलेक्शन करवाते वो लोग, प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन एंड स्टेट विधानसभा का इलेक्शन। वाइल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, कंट्रोलर नॉट कंट्रोलर, कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, दिस इज कंट्रोलर और कंप्यूट करना, इन दोनों को मिलाकर कंट्रोलर बना है, ठीक है। दे ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दे आर द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। आपके मेरे पैसे जो इनकम टैक्स के द्वारा हम सरकार को देते हैं, सरकार उसको यूज करती है, क्या सरकार उसको सही तरीके से यूज करती है कि नहीं, वो हमें ये सीएजी इंश्योर करता है। यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब इंडिपेंडेंट बॉडीज है। दोस्तों, इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब है कि उनका टेन्योर फिक्स्ड है, उनकी सैलरी फिक्स्ड है, उनका अपॉइंटमेंट का तरीका, उनको निकालने का तरीका, सब कुछ फिक्स्ड है। ओके, देन comes another salient feature which is emergency प्रावधान। दोस्तों, कोई भी देश चलाने के लिए, ठीक है, ये विचार होना तो जरूरी है कि भैया प्लान भी क्या है आपका। इन केस देश में अचानक से इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, लॉ एंड ऑर्डर की परेशानियां होने लगी, तो प्लान भी क्या है? ये रहा प्लान बी विच इज नोन एज इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 एंड आर्टिकल नंबर 360 के द्वारा वी हैव इलेबोरेटली मेंशन कि देश की सिक्योरिटी, देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए, ठीक है, हमें अगर इमरजेंसी लगानी पड़ी हम लगाएंगे। आर्टिकल नंबर 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 टॉक्स अबाउट स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल नंबर 360 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये देखिए आपके सामने 352, 356 एंड 360। नेशनल इमरजेंसी ऑन 3 ग्राउंड: वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। दोस्तों, शुरुआत में ये वर्ड नहीं था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस समय पे एक वेग टर्म था इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, उसका कोई भी मतलब हो सकता था और इंदिरा गांधी ने इसका अपनी तरीके से मतलब समझकर एक नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद 44th अमेंडमेंट में हमने ये वर्ड निकाल दिया और उसकी जगह पे वी एडेड अ वर्ड कॉल्ड armed rebellion. Yes or no? Then, when in a state constitutionally machineries are failed, then we apply president's rule. Or there is failure by state to comply the order of the center. तब भी आर्टिकल नंबर 365 के द्वारा we can implement president's rule, which is state emergency. And then we have a financial emergency through article number 360, ठीक है। अगर देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेटन हुआ है, ठीक है, या क्रेडिट ऑफ इंडिया आसानी से मिल नहीं रही है, तब हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। भगवान की शुक्र से आज तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है। कोविड-19 के दौरान लग सकती थी, ऐसा माना जाता था। दोस्तों, इमरजेंसी के दौरान होता क्या है? इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल द मोर पावरफुल, whatever they decide is applicable. Okay, there is no federal structure. State के पास कोई पावर नहीं होगा, सब पावर lies in the hands of center. Yes or no? दोस्तों, ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है पॉलिटिकल सिस्टम का फ्रॉम फेडरल स्ट्रक्चर टू यूनिटरी स्ट्रक्चर की इमरजेंसी में हम अलग अलग स्टेट के पास से पावर छीन कर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देंगे, ये इंडिया का एक यूनिक फीचर है और ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 3 टियर गवर्नमेंट, ठीक है भाई, भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल सिस्टम था उसमें सिर्फ ड्यूअल पॉलिटी थी, सेंटर और स्टेट।
बाद में 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में वी एडेड थर्ड टीयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नोन एज पंचायती राज। ठीक है, तो इसीलिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पंचायती राज अमेंडमेंट भी कहा जाता है। 73rd अमेंडमेंट के अंदर वी अलाउड recognition, constitutional recognition of panchayat, while in 74th amendment we allowed constitutional recognition of municipality। दोस्तों बात हो रही है लोकल गवर्नमेंट की। सेल्फ गवर्नमेंट के जो विचार गांधी जी के थे कि भैया ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो लोग रहते वो लोग ही अपने एरिया को संभालें, उसके लिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को लॉ नहीं बनाने चाहिए, इन्हीं को बनाने चाहिए। तो हमने गांव के लिए पंचायती सिस्टम लगाई और अगेन से सिटीज अर्बन एरिया के लिए हमने म्यूनिसिपालिटी के बारे में बात करी। दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करी गई। ठीक है दोस्तों, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की कोशिश करी। आपको याद होगा इन 2021 मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की स्थापना करी गई, ये सुनो, और उसके पहले मिनिस्टर बने मिस्टर अमित शाह। ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव्स आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर आवर कंट्री टू रन द शो। बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मैनेज्ड बाय दिस पीपल। ठीक है, अमूल विच इज फार्मरों का अपना एक कोऑपरेटिव है। इंडियन कॉफी हाउस, ठीक है, रेस्टोरेंट है, ठीक है, जो वहाँ लोग काम करते हैं वही वहाँ के ओनर है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कोऑपरेटिव बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों पार्लियामेंट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सिस्टम के ऊपर भी बात करी और स्टेट के पास भी कोऑपरेटिव बनाने का वादा करा। जब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होती है वो सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आर कमिंग अंडर डायरेक्टली आरबीआई, while state cooperatives they do not come under RBI, thereby again say giving independence to the particular state। So दोस्तों ये है हमारे सामने 18 salient features। हमने इन सभी salient features को डिटेल में समझाया। It took 2 sessions but these sessions are very crucial। दोस्तों इन दोनों सेशन को अच्छे से देखिएगा और इनके आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में जो आते हैं वो सर्च करके पढ़ने की कोशिश करिएगा। शायद इस वीक का एक होमवर्क आप यही ले सकते हैं कि ये 18 के 18 टॉपिक के बारे में एक एक आर्टिकल, ठीक है, दिन में 3-4 आर्टिकल पढ़ लीजिए। हर एक टॉपिक के ऊपर एक आर्टिकल, सो मतलब 3 या 4 टॉपिक को मिलाकर एक दिन में न्यूज़पेपर के आर्टिकल सर्च करके पढ़िए, सो दैट यू गेट मोर आइडिया अबाउट दिस फंडामेंटल्स। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। दोस्तों अगर आपको इस तरीके के टॉपिक पसंद आ रहे हैं, इस तरीके के सेशन पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए इन द कमेंट बॉक्स वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, एंड डोंट मिस आउट टू गेट PDF फ्रॉम आवर वेबसाइट विच इज़ नोन एज courses.protalentdigital.com। प्लीज़ आप वहाँ से इसको लेना भूलिएगा मत। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।